Hello students. First flight lesson number 2, Nelson Mandela, long walk to freedom. Okay, now see, this is a long walk for freedom because South Africa was suffering since a very long time from the theory of apartheid. Theory of apartheid is a difference between blacks and white. Nelson Mandela and many other leaders fought for this fight, okay, and on 10th May they celebrated their Independence Day. So on this 10th May, Nelson Mandela and many other representatives of the world, they gathered and they were celebrating their independence. This was 10th May 1994. Okay, now see, this is a small extract. Extract is a small part. Okay, now see, here it is written in this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom. Mandela speaks about the historic occasion, the inauguration. You guess what the occasion might be. Check your guess. This news item from BBC of 10th May 1994. ओके सर, अब देखो सर, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को. देखो सर, 10th में dawn is an early morning. Now see, यहाँ पे dawn, why it is said as a dawn over here? Because I told you that they fought a long struggle, और long struggle को fought करने के बाद आज एक नई सुबह साउथ अफ्रीका में हुई है. सो दैट्स वाई it is a 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been presently besieged. Besieged is to be surrounded closely by. Okay, besieged by all the dignitaries. Dignitaries are the remarkable, famous, legendary person, and the world leader who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever on the international leader on South Africa soil. अब देखो सर, the representatives of the world, that means जितनी भी countries हैं उनके सारे representatives, they were coming on the soil of South Africa. Okay, they were coming on the soil of South Africa just to pay, okay, just to pay their, what you can say, happiness, or just to pay their wishes to Nelson Mandela on achieving independence after such a long time. Okay, yeah. The ceremony took place in the lovely sandstone apartheid formed by Union Buildings in Pretoria. अब ये सेरेमनी जो हुई थी, ओके, ये सेरेमनी हुई थी एक बहुत ही बड़ा एम्पी थिएटर. नाउ व्हाट इज एन एम्पी थिएटर? एम्पी थिएटर इज अ बिल्डिंग विदाउट रूफ, ओके, विथ मैनी रोज ऑफ सीट राइजिंग इन स्टेप्स. अब देखो सर, एम्पी थिएटर को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसमें पूरे राउंड शेप में पूरा थिएटर होता है, ओके, और उसमें खाली स्टेज पार्ट कवर्ड होता है. The stage part is having the roof and rest of all part is open. You can say it is a one type of open theater where only the stage part is covered. So that is known as an amphitheater. और बाकी सबके बैठने की ऐसे circles में, okay, they are having a seats over there, okay, in a semicircle form. Okay, so now this amphitheater was mainly built by Union Building. It is said to be a Union Building. Why Union Building? Because it was mainly made by Britishers. Britishers ने इस amphitheater को बनाया था, और आज तक इस amphitheater में किसी भी blacks की एंट्री नहीं थी. लेकिन इसी ब्रिटिशर्स के बनाई हुई ये बिल्डिंग में आज पहली बार ब्लैक्स की एंट्री हो रही है, ब्लैक पीपल की एंट्री हो रही है. ओके, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग देयर इंडिपेंडेंस इन दिस थिएटर. Okay, sir? Yeah. Now see, now this building is in Pretoria.
Okay, for decades this had been seat of white supremacy. आज तक अगर यहाँ पे कोई रूल कर रहा है तो कौन रूल करते थे सर? ऑल द वाइट पीपल, द वाइट powerful people. That's why it is a white is a British powerful people. And now it was the of the rainbow gathering. Rainbow gathering, why? Because now people from all over country, people of all races, they are gathered over here, okay, of different colors and nations for the installation launching. They're going to launch freedom. They're going to install freedom. Okay, installation of South Africa's first democratic non-racial government. Okay, तो साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिश होने जा रही है एक तो डेमोक्रेटिक और एक नॉन रेशियल, मतलब नो वाइट नो ब्लैक, ओके, विदाउट एनी रेस. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter जेनिन. अब देखो सर, यहाँ पर है ना, नेल्सन मंडेला इस डे को ऑटम डे बोलते हैं. ओके, वाई इट इज सेड टू बी ऑटम? बिकॉज सी, ऑटम इज अ सीजन व्हेन अ ट्री यूज्ड टू शेड अवे, यूज्ड टू रिमूव all the old leaves and the new leaves are sprouting on the beautiful tree. In the same way, okay, autumn में क्या होता है सर? पतझड़ होता है. ओके, पतझड़ मतलब पत्तों का झड़ना, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते हैं. इन द सेम वे साउथ अफ्रीका में अभी तक वाइट पीपल्स का रूल था. ओके, तो बेचारे साउथ अफ्रीकन जो ब्लैक पीपल्स थे वो सफ़र कर रहे थे. लेकिन अब क्या स्टार्ट हो गया? नाउ ऑल दैट वाइट सुप्रीमेसी इज रिमूव्ड एंड नाउ देयर इज अ रूल ऑफ इक्वालिटी. नो वाइट नो ब्लैक. Okay, they are working together. Okay, ठीक है सर. Okay, so that's why it is said to be as an autumn day. I was accompanied by my daughter. Accompanied मतलब साथ में होना. उनकी बेटी का नाम क्या है सर? We are talking about the daughter of Nelson Mandela. Okay, Jinani. On the podium. Podium is a very small platform. अब देखो सर, यहाँ पे खाली नेल्सन मंडेला, not only the Nelson Mandela, but other important dignitaries of the South Africa, they also took the pledge. उन्होंने भी शपथ ली. किसकी शपथ ली? कंट्री को किस तरह से वो चलाएंगे उसकी शपथ ली. They took a pledge for that. So that was Mr. D. Clerk. Mr. D. Clerk, okay, was the first sworn मतलब to be pledged. Okay, कसम खाना, sworn in as second deputy president. अब देखो सर, प्रेसिडेंट के नीचे 2 प्रेसिडेंट और होते हैं. ओके, उसको बोलते हैं फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. डेप्यूटी मतलब, डेप्यूटी का मीनिंग क्या होगा? उनके नीचे काम करने वाले. फॉर एग्जाम्पल, इन द एब्सेंस ऑफ नेल्सन मंडेला, दिस डेप्यूटी इज गोइंग टू वर्क. ओके, एज यू आर हैविंग इन अ स्कूल that whenever principal is absent, so vice principal will work in the place of principal. In the same way, whenever president is not there in the country, okay, or president is sick, or president is somewhere around not present at particular situation, okay, at that time deputy president holds the position. So Mr. D. Clerk, he took the oath as a second deputy president, and then okay, yeah, Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president. When it was my turn matlab Nelson Mandela's turn, okay, I pledged to obey and uphold. Obey matlab to follow, uphold matlab to keep, follow and keep the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people. Okay, मैंने कसम खाई, मैंने प्लेज लिया कि I will devote, मैं अपनी पूरी लाइफ दे दूँगा. किसको दे दूँगा सर? कंट्री को. ओके, कंट्री को और कंट्री के लिए, फॉर द वेल-बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, या टू assemble guests and the watching world I said. देखो,
assembled is a gathered, ठीक है. मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे इंटरनेशनल गेस्ट वहाँ पर आए थे. पहली बार ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका में इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे. ओके, नाउ सी, नाउ हियर बिगिंस द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला. सो टुडे ऑल ऑफ अस, टुडे मतलब 10th May 1994. Okay, today all of us do by our presence here confer glory. Confer matlab to give. Glory is a respect and hope to a newborn liberty. Newborn liberty of, newborn freedom of South Africa. Okay. Out of the experience of an extraordinary human disaster. Now, what was extraordinary human disaster? So, extraordinary human disaster was all the injustice, was all the cruelty that the people of South Africa suffered because of white supremacy. Okay? Yeah. Extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Now he's saying that we will now give a birth to new society, that society for which everyone will be proud now. Okay, yeah. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation is a freedom from restrictions. Now nobody is there to put a restriction on us that black people will do this and white people will do this. No do and don'ts. No differences between do and don'ts. No do and don'ts between blacks and whites. Okay, they will be treated equally. Yeah. Okay, sir. We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Okay, now he is promising to his people that we will try our best to remove, okay, to remove poverty, to remove deprivation. Deprivation matlab, though if somebody is not getting anything, so that person is deprived. वो उस चीज़ से दूर जा रहा है, so वो उसका deprivation को दूर करने का. Then all type of suffering or all type of gender or other discrimination. These all things should not be there in South Africa. For this he will take a watch. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Now, nobody in this country, okay, nobody in this country will oppress मतलब to be ruled by. Okay, अब इस कंट्री को कोई भी दूसरा इंसान रूल करेगा नहीं. Okay, yeah, not इंसान and not any nation also. Yes sir, yeah. The sun shall never set on so glorious a human achievement. That means ये जो सनसेट हुआ है, मतलब ये जो हमको इंडिपेंडेंस का सनसेट मिला है, that will never मतलब ये सन कभी नीचे झुकेगा, there will be never a dusk of that. Always there will be a dawn. Always there will be a new arising in South Africa. Okay, let freedom reign. Reign का मीनिंग होता है rule. God bless South Africa. Okay, let freedom reign. God bless Africa. Okay, yeah. अब देखो सर, now इसका next topic है, मतलब इसका next part है. A few moments later, we all lifted our eyes in the A few minutes later, we all lifted our eyes in awe as a speculator array of South Africa jets. अब देखो सर, यहाँ पे नेल्सन मंडेला जैसे उन्होंने थोड़ा सा स्पीच में बोला, स्पीच में बोलने के बाद यहाँ पे एक स्पेक्यूलेटर एरे है. स्पेक्यूलेटर एरे इज एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले इन द स्काई. ओके, दैट मीन्स स्काई में जितनी भी उनके जेट
फाइटर्स हैं, मतलब जो एरोप्लेन चलाने पायलट्स हैं, उन्होंने थोड़ा सा करतब, they displayed their show, okay, to attract the people, okay. As a speculator array of South Africa, jets, helicopters and troops are the soldiers, carriers rode in perfect formation over the Union building. It was not only a display of pinpoint precision is a quality, and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy. Okay, now इन्होंने ये जो डिस्प्ले दिखाया, इन्होंने ये जो शो दिखाया, that was a one type of quality, and that was one type of military's loyalty मतलब honesty to democracy, okay, to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ओके, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो सोल्जर्स हैं, ये जो जवान हैं, जिन्होंने ये एयर शो दिखाया, इस एयर शो के थ्रू वो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं कि हम अपने देश के प्रति, अपनी न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट के प्रति, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी के प्रति कितने वो वफादार हैं. ओके, या only moments before, the highest generals of South Africa, defense force and police, their chest backeted मतलब decorated with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged for their loyalty. Okay, अब देखो सर, यहाँ पे नेल्सन मंडेला थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहे हैं. ओके, फ्लैशबैक में कैसे जा रहे हैं कि थोड़ी देर पहले नेल्सन मंडेला के आगे जितने भी डिफेंस फोर्स हैं, डिफेंस फोर्स मतलब जितने भी जैसे हमारे 3 डिफेंस फोर्स मेन होते हैं. लैंड का रहता है, दैट इज़ एन आर्मी, देन एयर का होता है हमारा एयर फोर्स, और वाटर का होता है हमारा नेवी. ओके, तो जितने भी हाईएस्ट कमांडर्स हैं ऑफ आर्मी, ऑफ नेवी एंड ऑफ एयर फोर्स, ओके, जिनके चेस्ट पे, ओके, उनकी चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स होते हैं और बहुत सारे मेडल्स होते हैं. ओके, जितनी हाईएस्ट उतनी पोस्ट, उतने डिफरेंट कलर्स के रिबन्स होते हैं, कोई रेड, कोई ग्रीन, कोई ब्लू. ओके, सो दैट शोज देयर पोस्ट, कितनी हाई पोस्ट पे वो हैं, कितनी हाई पोस्ट पे वो काम करते हैं. तो ये तीनों एरिया के मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके जो हाईएस्ट ऑफिसर्स थे, थोड़ी देर पहले वो नेल्सन मंडेला के सामने आए थे और उन्होंने उसको सैल्यूट किया था. ओके, दे सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड फॉर देयर लॉयल्टी, और उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के प्रति लॉयल रहेंगे. तो नेल्सन मंडेला को लग रहा है कि अगर थोड़े टाइम पहले, मतलब कुछ सालों पहले, जब मैं ब्लैक की तरह ट्रीट होता था, ओके, तो यही पुलिस थी, यही मिलिट्री थी जो मेरे को अरेस्ट करती थी, और आज यही पुलिस और यही मिलिट्री आज मेरे को सैल्यूट कर रही है when there is a removal of apartheid movement. Okay, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, at Chevron is a pattern in the shape of V of Impala are the jet planes left a smoke trail of a black, red, green, blue and gold of new South African flag. अब देखो सर, उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जेट प्लेन्स जो है, जो कि वी शेप में, दे आर इन द वी शेप. ओके, वी शेप में वो स्काई में उड़ रहे हैं, और स्काई में उड़ते उड़ते इम्फाला जेट प्लेन्स के पीछे से कलर्स निकल रहे हैं. ओके, कौन से कलर्स निकल रहे हैं? दीज आर द colors of South African flag. These are the black, red, green, blue and gold color. Okay, तो इसके थ्रू वो स्काई में एक अपना साउथ अफ्रीका का फ्लैग, जैसे फ्लैग के कलर्स दिखा रहे हैं
and they are trying to show their loyalty towards the country. The day was symbolized for me by playing of our two national anthem and the vision of whites singing Noxie Sikale Africa and the blacks singing Diastem, the old national anthem of Republic, although that day neither group knew the lyrics of the anthem, the ones despised they would soon know the words by heart. Despise का मीनिंग है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ. अब देखो सर, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आज पहली बार ऐसा हुआ था, 10 मई को पहली बार ऐसा हुआ था कि दो नेशनल एंथम साथ में गाई गई थी. दैट मीन्स द नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका ऑल्सो एंड द न्यू व्हाट यू कैन से द ओल्ड नेशनल एंथम ऑफ साउथ अफ्रीका एंड द न्यू वन ऑल्सो, दोनों साथ में गाई गई थी. ओके, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन I was overwhelmed with a sense of history. In the decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched out the differences and erected a system of racial discrimination against the dark-skinned people of देयर ओन लैंड. ओके, अब देखो सर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है एंग्लो बोर वॉर का. ये एंग्लो बोर वॉर क्या है? दिस वॉज 2 wars. एंग्लो बोर वॉर मतलब एंग्लो इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, दैट इज सॉरी, एंग्लो इज अ नेम ऑफ इंग्लिश एंड बोर इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश पीपल ने बोर एरिया में वॉर किया था. दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. ओके, सो यहाँ पे 2 बार वॉर हुई थी. 2 wars बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड अफ्रीकन एस्टैब्लिश रिपब्लिक 11th October to establish republic 11th October 1899 to 1909 31st May. दैट मीन्स ये 2 बार वॉर हुई थी टू ब्रिंग रिपब्लिक इन साउथ अफ्रीका. द फर्स्ट वॉर टुक ऑन 11th October 1899 and second war took place on 1902. Okay, that is the 31st May. ओके सर, तो देखो सर, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा स्ट्रगल, जैसे इंडिया को ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट कराने में हम लोगों ने इतनी सारी वॉर्स लड़ी, इतने सारे स्ट्रगल्स हुए, इतनी सारी मूवमेंट्स हुई. इसी तरह साउथ अफ्रीका में मोस्ट फेमस क्या है? 2 Anglo-Boer wars. Okay, so देखो सर, now because of these Anglo-Boer wars or because of many other struggles also, पहले जो साउथ अफ्रीका में डिस्क्रिमिनेशन था, अब वो वहाँ से रिमूव हो गया है. ओके, या द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. देखो सर, अभी साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स ने कम रूल नहीं किया था. ओके, इट वॉज मोस्ट हार्शेस्ट, ऐसा हार्श कहीं पे भी नहीं था. मोस्ट इनह्यूमन मतलब इंसान के साथ ऐसा बिहेव नहीं करे, ऐसा गंदा बिहेवियर वहाँ पे होता था. और दूसरा, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th century and my own 88th decade मतलब 80 years, because 1 decade equal to 10 years, तो 8 decade equal to 80 years. अब देखो सर, यहाँ पे 80 years के जब नेल्सन मंडेला हो गए 8080, ओके, उस टाइम पे ही बिकेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका. ओके, या 8th decade as a man that the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of color of their skin. Now इतने टाइम के बाद, इतना सब कुछ सहन करने के बाद, आज पहली बार साउथ अफ्रीका में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया.
Okay, yeah. That day had come through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. अब देखो सर, यहाँ पे नेल्सन मंडेला आज के दिन पे ये सारे इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स को याद कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब लोग नहीं होते तो आज शायद साउथ अफ्रीका को इंडिपेंडेंस नहीं मिलता. इसीलिए ही इज़ पेइंग हिज होमेज, ही इज़ पेइंग हिज ट्रिब्यूट to all those great leaders of South Africa who had sacrificed their life in the country's, or you can say for the country's independence. Okay, so now I felt that as I have on so many others days, that I was simply the sum of all. Sum is a total. Okay, total of all the साउथ अफ्रीकन पैट्रियोट्स मतलब देशभक्त. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मैं जो यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं अकेला नहीं हूँ, मैं टोटल हूँ, मैं सम हूँ. मैं टोटल क्या हूँ? टोटल किसका? ऑल द ग्रेट साउथ अफ्रीकन लीडर्स हु डाइड फॉर आवर कंट्री. ओके, या who had gone before me मतलब who had died before me. Okay, that long and noble line ended and now begin again with me. I was pained मतलब to be sad, that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. Wrought is it is a done or you can say achieved. ठीक है, इनको दुख हो रहा है कि वो सारे ग्रेट पीपल जिन्होंने अपनी लाइफ साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस के लिए दे दी, अब वो लोग यहाँ पर हैं नहीं कि वो देख सकें कि उनके सेक्रीफाइस ने क्या क्या अचीव किया. ओके, या द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. ये जो थियोरी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन थी ना बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लोगों में गहरा जख्म दे दिया, वॉन्ड दे दिया. ठीक है, और उसको भरना बहुत मुश्किल है. All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt. Profound is a deep, okay, deep and strong hurt that was given by Britishers. Okay, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect. अब देखो सर, ये बात तुमको मालूम है कि सोना है ना सर, जितना तपेगा गोल्ड को जितना हीट करेंगे, गोल्ड को जितना बर्न करेंगे, उतनी ही उसमें चमक आती है. ओके, इसीलिए सर यहाँ पर जितना इनके ऊपर ऑपरेशन आया, ठीक है, ओके, जितना इनके ऊपर ऑपरेशन आया, देखो सर आपको थियरी मालूम है, ठीक है, कि जैसी आपकी एक्शन होगी वैसा रिएक्शन आएगा ही आएगा. ओके, तो सर यहाँ पे ये समझना बात कि बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटलिटी मतलब क्रूअल, ऑपरेशन मतलब किसी को दबाना, किसी के ऊपर रूल करना, ज़बरदस्ती रूल करना, ऑप्रेस करना, टू प्रेस समवन, टू रूल ओवर समवन. ओके, एंड ब्रुटलिटी इज़ अ क्रूअलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस. उन्होंने कहा कि जितना ऑपरेशन हुआ, जितनी क्रूअलिटी हुई, उतने ग्रेट लीडर्स हमारे यहाँ पे बॉर्न हुए. फॉर एग्जाम्पल ओलिवर टम्बोस. ओके, ओलिवर टम्बोस, वॉल्टर सिस्लू, देन चीफ लुथैली, देन यूसुफ डेबो, ब्रैम फिस्कर and Robert Sobekwe. Okay, now these are the men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. Generosity is a kind-hearted, that their like may never be known again. मतलब इनके जैसे फ्रीडम फाइटर्स वापस से हमको मिलने वाले नहीं है, never be again. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. इनके ऊपर इतनी क्रूअलिटी हुई, इतना ऑपरेशन हुआ, इतना गलत तरीके से इनके ऊपर रूल किया गया कि ये इतनी महान हस्तियाँ बनी. ठीक है,
जितना ऑप्रेशन हुआ इनके ऊपर, ओके, जितनी ब्रुटलिटी इनके ऊपर हुई, उतना ही अच्छा हाइट ऑफ कैरेक्टर उनका ग्रो हुआ. दे अचीव सच अ हाइट ऑफ कैरेक्टर. माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स that lie beneath मतलब under its soil. Okay, as you all know that South Africa is very rich in minerals. बहुत अच्छे minerals, बहुत अच्छे gem. Why gems? Because it is a coastal country. Okay, near the sea area. Okay. तो देखो sir, that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, then finer and truer than purest diamonds. It is from these comrades in the struggle that I earned the meaning of courage. Nelson Mandela is saying कि अगर मुझे करेज का मीनिंग मालूम पड़ा है तो ये कॉमरेड्स हैं. कॉमरेड्स मतलब जो मेरे साथ थे, ओके, मेरे साथ काम करने वाले, ओके, जिन्होंने मेरे साथ काम करके, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, ओके, उनके थ्रू मुझे करेज की सही मीनिंग मालूम पड़ी. व्हाट इज़ अ करेज? टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वेमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप मतलब टू फेस, टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, showing a strength and resiliences and defies the imaginations. Resiliences मतलब the ability to deal with any kind of hardship and recover from its effects. Okay, देखो सर, जितना भी टॉर्चर इन लोगों के ऊपर हुआ, चाहे वो मैन हो चाहे वो विमेन हो, अगर उनको साउथ अफ्रीका से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाना था तो जितना भी टॉर्चर उनके ऊपर हुआ, जितना भी अनजस्टिस उनके साथ हुआ, उन सबको उन्होंने सहन किया और उसका अपोज किया. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एन एब्सेंस ऑफ फियर, ओके, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री. ओके, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. ओके, अगर हम लोगों ने अपने फियर को कॉन्कर कर लिया, कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, ठीक है, जो भी फियर हमारे अंदर आता है, किसी भी चीज़ का डर अगर हमारे अंदर है और उस डर को हम लोगों ने कॉन्कर कर लिया, उस डर के ऊपर अगर हम लोगों ने विक्ट्री कर ली, तो दैट इज़ अ करेज. फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को अंधेरे में जाने से डर लगता है, लेकिन अगर वो हिम्मत करके अंधेरे में गया, ओके, एक बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, फिर वो हैबिचुएटेड हो जाता है, फिर उसको डर लगता नहीं है. इन द सेम वे कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स की ब्रुटलिटी को सहन करने का जो डर था, ओके, उसके ऊपर इन लोगों ने कॉन्कर कर लिया, तो अब दे हैड अ न्यू फीलिंग ऑफ करेज. ओके, या नो वन इज बॉर्न हेटिंग another person because of the color of his skin or his background. Background is a family background or his religion. अब देखो सर, यहाँ पे है ना, हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ अ स्किन कलर और बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड और बिकॉज ऑफ एनी रिलीजन वी शुड हेट एनी वन. ओके, पीपल मस्ट लर्न टू हेट. इफ दे कैन लर्न टू हेट, they can be taught to love, for love becomes more naturally, because love comes more naturally to human heart than its opposite. देखो सर, हेट को तो क्रिएट करना पड़ता है और लव क्या होता है, नेचुरली होता है. देखो फॉर एग्जाम्पल, हेट का कोई रीज़न होता है. आई एम हेटिंग सो एंड सो. वाई यू आर हेटिंग? बिकॉज ऑफ सम क्वालिटीज़ और बिकॉज ऑफ सम रीजन्स वी आर हेटिंग समवन. लेकिन लव कैसा होता है, नेचुरल. एक छोटे से बेबी को हम लोगों ने देखा नहीं, भले वो बेबी किसी का भी हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कलर का हो, अगर वो छोटा बेबी एक प्यारा सा स्माइल हमको दे देता है तो अपने आप लव आ जाता है. लव को क्रिएट करने की जो इट कम्स नेचुरल. लेकिन हेट के लिए तो हमको कोई ना कोई रीज़न चाहिए. अगर कोई अननोन पर्सन हमारे सामने खड़ा हुआ है, वी कांट हेट दैट पर्सन. हाँ,
अगर हमारे पास रीज़न है, अगर हम उसको जानते हैं, बिकॉज ऑफ सम रीज़न द हेट इज़ क्रिएटेड बट द लव इज़ वेरी वेरी natural. Okay, yeah, okay sir. Even in the grimmest time, grimmest matlab saddest time in the prison, when my comrades and I were pushed to our limits, pushed to our limits matlab pushed to last point in our ability to bear pain. मतलब इन लोगों को इतना पेन देते थे, इतना इनको टॉर्चर करते थे, हद से ज़्यादा. ओके क्या बोलते हैं, जितनी उनकी सहनशीलता होती थी उससे भी ज़्यादा. सो दैट इज़ वाई इट इज सेड एज अ पुश टू आवर लिमिट्स. आई वुड बी अ ग्लिमर. ग्लिमर इज अ टू शाइन. ओके शाइन करना. शाइन ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गाड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वॉज enough to measure me and keep me going. अब देखो सर, यहाँ पे है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जितने भी वाइट पीपल हैं, ये इन सारे ब्लैक पीपल को, जो भी क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंट प्रिजनर्स थे जो देश के स्ट्रगल के लिए प्रिजन में थे. ओके तो यहाँ पे इनके ऊपर बहुत टॉर्चर होता था, इतना टॉर्चर होता था, इतना वो लोग उनको परेशान करते थे कि कोई ना कोई सोल्जर जो वाइट होता था उसके मन में ये फीलिंग आती थी, ये इतना भी कोई किसी को परेशान करता है. तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अगर उस सोल्जर के मन में ये फीलिंग्स आई, इसका मतलब कि हमने उनके अंदर लव क्रिएट किया कि दो वी आर ब्लैक बट देन टू वी आर ह्यूमंस. यू कैनॉट pressurize or you cannot oppress, you cannot mistreat any of the person beyond one's limit. Okay, yeah. Man's goodness is the fame that can be hidden but never been extinguished. किसी भी इंसान की जो फेम होती है ना, फेम मतलब उसका नाम, whatever good things that the person has earned, that is a fame. Okay, that fame cannot be hidden, वो कभी छुपती नहीं है, but never extinguish, और वो फेम, वो नाम किसी का बुझता भी नहीं है. Okay, yeah. Now see, in life every man has twin obligation. देखो सर, obligations मतलब ड्यूटीज़. हमारी लाइफ में दो तरह की ड्यूटीज़ होती हैं, दो तरह की फुलफिलमेंट, ड्यूटी का फुलफिलमेंट हमको करना पड़ता है. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल. देखो सर, पीपल, कंट्री एंड कम्युनिटी. हमको हमेशा दो तरह की ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है. एक ड्यूटी वो जो ड्यूटीज़ हमारी फैमिली के प्रति हैं, हमारे पेरेंट्स के प्रति हैं, वाइफ एंड चिल्ड्रन के प्रति है, ये एक पार्ट हो गया. और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है? ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स आवर पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री. ओके, हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं, देन हमारी कम्युनिटी है, हमारा समाज है, और हमारा देश, हमारी कंट्री. ओके, या इन अ सिविल एंड ह्यूमन. सिविल मतलब व्हाट यू कैन से पीपल, citizens. Okay, no, all the citizens of a country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination. Inclination is a natural tendency of behavior and behavior. ठीक है, हर कोई अपने नेचुरल बिहेवियर के हिसाब से ये दो ड्यूटीज़ को फुलफिल करता है. ड्यूटीज़ टूवर्ड्स what you can say nears and dears, and duties towards people, community and country. Okay, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. Why? Because in South Africa, a man of color who attempted to live as human being was punished and isolated. अब देखो सर, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले साउथ अफ्रीका में बहुत ही मिसरूल था. मतलब ब्लैक के प्रति बहुत सारा
मिसरूल था, उनके साथ बहुत इनजस्टिस होती थी। अगर वो इंसान बन के रहना चाहें तो वो भी उनको अलाव नहीं था। दे वर पनिश्ड एंड दे वर आइसोलेटेड, मतलब उनको अलग कर देना, किसी के साथ मिलने जुलने नहीं देना। ओके, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटीज टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली, मतलब अनअवॉइडेबली रिब्ड मतलब रिमूव्ड from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellions. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband. ओके, अब देखो सर, यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि पहले साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी इंसान एक बेटा बनने की कोशिश करता था, एक फादर बनने की कोशिश करता था, एक ब्रदर बनने की कोशिश करता था, तो ये ऑब्लिगेशन वो फुलफिल नहीं कर पाता था, बिकॉज ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी डिवाइड एंड रूल। वो साउथ अफ्रीका के लोगों को, उनके रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनने देना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि दीज ब्लैक पीपल शुड ओनली एंड ओनली बी अवर स्लेव्स, दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एंड ट्राइड टू बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन्स, दे आर ओनली एंड ओनली slaves, they are only working for Britishers. Okay, yeah. I was not born with a hunger to be free, I was born free. अब देखो सर, यहाँ पर नेल्सन मंडेला बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। ऐसा नहीं था कि मेरे को हंगर फ्रीडम की भूख थी, नहीं, मैं फ्रीडम ही पैदा हुआ था, मतलब विथ फ्रीडम ओनली आई वॉज बॉर्न। ओके, या free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut. Now see, these all freedom he used to love when he was a very young child. Okay, yeah. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear streams with the rivers that can run through my village, free to roast meals under the stars and ride ब्रॉड बैक ऑफ अ स्लो मूविंग बुल्स। अब देखो सर, नेल्सन मंडेला की जो अर्ली लाइफ थी वो बहुत ही पुअर लाइफ थी, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम पुअर फैमिली, वेरी पुअर फैमिली। दे यूज्ड टू लिव इन हट। ओके, तो ममा का जो हट है, ममा की जो झोपड़ी है, उसके आसपास जो भी फील्ड्स हैं वहाँ पे फ्रीली घूमने का, देन वहाँ पे जितने भी रिवर्स हैं, रिवर के क्लियर वाटर्स हैं उसमें फ्रीली घूमना, देन जितने भी वहाँ पे सब लोग फ्रेंड्स मिल के फॉरेस्ट में जाते थे और वहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी एनिमल को हंट करते थे, हंट करके उसको पेड़ पे लटका के उसको रोस्ट करना, फिर वो मीट को खाना, फिर क्या बोलते हैं इसको, जो बुल्स होते हैं मतलब ऑक्स होते हैं, ठीक है, उनके पीठ पे बैठ करके और स्लो मूविंग बुल्स के ऊपर चलना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड father and abide मतलब bound by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. देखो सर, कोई भी सोसाइटी में अगर हम लोग रहते हैं ना, we are abound with the society. सोसाइटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमको फॉलो करना रहता है। अगर उसको फॉलो किया तो वी आर ओके, अगर हम लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया, अपोज किया, तो नेचुरली ट्रबल विल बी क्रिएटेड। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन मतलब इमेजिनेशन, ओके, समथिंग दैट अपीयर्स टू बी नॉट रियल। ओके, या यस, illusion when I discovered as a young man that my freedom had already been taken away from me, that I had begun to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased,
and go wherever I choose. अब देखो सर, जैसे जैसे नेल्सन मंडेला बड़े होते गए, ओके, उनका फ्रीडम का कॉन्सेप्ट चेंज होता गया. ओके, नाउ ही वांटेड to be independent, he wanted to be free during the school life, during the student life. Okay, as whatever transitory matlab it is a not permanent, keep on shifting, keep on changing. Okay, as a student he wanted to have a freedom to stay out at night, कि रात को जितनी देर चाहूँ मैं बाहर रहूँ, read what I please, जो चाहूँ वो मैं पढ़ूँ, go wherever I choose. Later as a young man, देखो सर, ये फ्रीडम था उनका बॉयहुड का. अब देखो सर, ये फ्रीडम था उनका अर्ली चाइल्डहुड, ये फ्रीडम था उनका बॉयहुड का. ओके, अब ये फ्रीडम व्हेन ही बिकेम समवॉट बिगर, यंग मैन. ओके, लेटर as a young man in Johnsburg, now Johnsburg is the name of a place. Okay, I yearn matlab long or to have a desire. I desire for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. My potential matlab my abilities, what I am able to do, that is a potential. Of earning my keeps, of earning my keeps matlab whatever I earn, जो भी मैं earn करता हूँ, that I can keep it with me. Of marrying, okay, to whom to marry and to whom not to marry, and having a family. Okay, the freedom not to be obstructed in a lawful life, कि मेरा ये कोई भी freedom, lawful life मतलब government should not interfere in the freedom of any of the person living in its country. Okay, yeah. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. अब नेल्सन मंडेला ने यह ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं कि खाली मेरा फ्रीडम ले लिया है, लेकिन मेरे जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, whosoever are living in South Africa, ओके, उनका भी फ्रीडम उनके पास नहीं है. ओके, या, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. I saw that it was not just my freedom that was curled is a reduced, but the freedom of everyone who looked like I did. Okay, that means who look like I मतलब who were blacks. ठीक है, कि जितने भी blacks थे साउथ अफ्रीका में, उन सब के फ्रीडम पर रेस्ट्रिक्शन था. ओके, that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. अभी तक नेल्सन मंडेला खाली अपने लिए लड़ रहे थे, लेकिन अभी वो टाइम आ गया जब वो जितने भी फ्रीडम के लिए हंगर है, मतलब जितने भी ब्लैक पीपल हु आर हंग्री फॉर फ्रीडम, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करके उन सब के फ्रीडम के लिए फाइट किया. इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, डिग्निटी इज अ रिस्पेक्ट, and self-respect that animated is an excited my life, that transformed a frightened young man into a bold one. देखो सर, अब नेल्सन मंडेला यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, कि मैं पहले बहुत ही फ्राइटेंड यंग मैन था, लेकिन जहाँ मैंने देखा कि इतने लोगों का फ्रीडम चला गया है, तो मैं बोल्ड बन गया. ओके, और मैंने अपने आप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं अब इन सबको आज़ाद करवाऊँगा. ओके, या, transform a frightened young man into a bold one, that draw a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom
I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains on any one of my people were chains on all of them. The chains on all my people were chains on me. अब देखो सर, यहाँ पे है ना, आप समझो बात कि नेल्सन मंडेला बाय प्रोफेशन ही वॉज लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, मतलब ही वॉज अ लीगल प्रैक्टिशनर, ही वॉज अ लॉयर, लेकिन अब सबको इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए ही बिकेम अ क्रिमिनल. ठीक है, ही वॉज अ वेरी फैमिली लविंग हस्बैंड, ओके, लेकिन नाउ ही बिकेम अ मैन विदाउट होम बिकॉज ही वॉज अ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल फाइटर. ओके, इंडिपेंडेंट के लिए फाइट कर रहे थे, जगह जगह उनको घूमना पड़ रहा था, तो उनका घर भी चला गया. ओके, देन ही वॉज अ लाइफ लविंग मैन, वो मैन जो अपनी फैमिली को, अपने चिल्ड्रन को, सबको बहुत ही लव करता है. बट नाउ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री ही बिकेम अ मॉन्क. मॉन्क मतलब साधु. ओके, he was a very what you can say freedom lover person. लेकिन अब उसके सारे फ्रीडम ले लिए बिकॉज उसको क्या लग रहा था कि अगर चेन, ओके, यहाँ पे चेन मतलब द चेन ऑफ स्लेवरी, इफ द चेन ऑफ स्लेवरी इज देयर ऑन माई पीपल देन दैट इज द चेन ऑफ स्लेवरी ऑन मी. ओके, if there is a chain of oppression on my people then that is the chain of oppression on me. Okay, yeah, now see, I knew that oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Okay, oppressor मतलब कौन? Britishers. Liberated मतलब free. Okay, as the oppressed मतलब कौन? All the people of South Africans. ठीक है सर. अब देखो सर, अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स इनको ऑप्रेस मतलब साउथ अफ्रीकन्स को अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहे थे. तो जितना प्रेशर, मैंने ये बात हम लोगों की आगे भी होगी कि जितनी क्रूअलिटी इनके अंदर थी, ब्रिटिशर्स के अंदर, है ना, दबा के रखने की साउथ अफ्रीकन्स पर. ओके, साउथ अफ्रीकन्स को किस तरह से दबा के वो अपने आप में रखें, कैसे वो उनके अंदर स्लेवरी और ज़्यादा क्रूअलिटी उसके लिए क्रिएट करें, उतना ही ज़्यादा उन लोगों के अंदर प्रेशर आ रहा था, क्योंकि जितना दबाएंगे उतना नीचे से प्रेशर और ज़्यादा आएगा. तो सर अब उतना ही इनके अंदर ज़्यादा प्रेशर आ रहा था कि हाउ दे ऑल कैन बिकम इंडिपेंडेंट. ओके, या यस सर. नाउ अ मैन हु टेक्स अवे another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars. Bars is a prison of prejudice. Prejudice मतलब a strong dislike without any good reason and narrow-mindedness. अब देखो सर, अगर हम लोग किसी दूसरे इंसान का फ्रीडम छीन रहे हैं, इसका मतलब हम खुद प्रिजनर हैं. वी आर बिकमिंग द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ओके, हम लोग खुद अपने आप में नफरत क्रिएट कर रहे हैं बाय हैविंग अ बार्स ऑफ प्रेजुडिस. इसको मैं पसंद करता हूँ क्योंकि ये ऐसा है, क्योंकि ये ऐसा है. इसको मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि ये ऐसा है, क्योंकि ऐसा है. ओके, तो बिकॉज ऑफ आवर ओन रीजनिंग ओनली वी आर क्रिएटिंग हेट्रेड इन आवरसेल्व्स. और जितना हेट्रेड हम लोग क्रिएट करेंगे उतना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. ओके, या ओके. The oppressed and the oppressor alike मतलब similarly are robbed of their humanity. देखो सर, जो ऑप्रेस करता है और जो ऑप्रेस होता है, दोनों की ह्यूमैनिटी, दोनों की इंसानियत चली जाती है. ऑप्रेशर करने वाला भूल जाएगा कि मैं किसी के ऊपर रूल कर रहा हूँ, और जिसके ऊपर हम लोग रूल कर रहे हैं वो बेचारा तड़प तड़प के उसके अंदर जो इंसानियत है वो भी ख़त्म हो जाएगी. उसके अंदर भी ऑप्रेसर के लिए हेट क्रिएट होगा. ओके, मेरे ऊपर कोई रूल करेगा तो नेचुरली मेरे ऊपर रूल करते 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 भूल जाएगा वो कि मैं इंसान हूँ. और जितना वो क्रूअलिटी मेरे ऊपर करेगा तो क्रूअलिटी सहन करते 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 मैं भी भूल जाऊँगी कि मैं भी इंसान हूँ.
मुझे भी इंडिपेंडेंट रहने का हक है. ओके या चलो सर. ओके तो सर अब इस तरह से द oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. So in this way, Nelson Mandela, he was trying to bring out the glory of South Africa. कि साउथ अफ्रीका में जितना लोगों ने स्ट्रगल किया और जितना उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए फ़ाइट किया, आज उतना ही डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा है. थैंक यू.